how many different alkenes on hydrogenation gives n hexane? So how many did you get the answer? 5. 3. So some errors are there. Some have sent the answer of this question. You can just put the double bond. Put it here. Put it here. Put it here. Any more structure possible? Kya? No, Nahin na? sir. Only 3. So 3 is the answer. I will change one. I will change one more. I will give one more question on similar type. You have to answer it now. Let's, or you can try one in front of me now, similar to that. It So will be can't little. we add double bond in between 4th and 5th carbon and the last? Hello. Hello, Hello. sir. Can't we add a bond in the further carbons also in the similar way? In the first question, Yeah, sir. where do you want to add? Between 4th and between 4th and 5th and 5th and 6th. Similar, no, it will give the same this one. If you add like this, it is same as this one. If you add like this, it is same as this one. है ना? Okay, sir. Thank you. Or let me discuss this question first. This question, then I will start another problem with you. Everyone tried this. How many structures you have for C3H6? 2. 2. Two. After drawing these all structures, you will understand one concept here. What we can do? CH2 double bond. How many hydrogen are there? 6. 6 hydrogen. We have to draw in that way. Or you can do also this. Both are possible. But what is the learning here? Just you can understand. Both the molecule is having formula what? C3H6. And what is C3H8? Open chain. Open chain है? क्या है ये? प्रोपेन है ना? Open chain है without any double or triple, or simply without any, I told you, without any pi bond. It means if I want to make C3H6 to C3H8, how many hydrogen you have to add? 2. 2 H atoms to be added. ठीक है? और 1 molecule. Hydrogen. one molecule of dihydrogen or hydrogen to be added. अच्छा, if I say only hydrogen, is it H2 or H? मैं बोला सिर्फ hydrogen. H2. It is H. always H2 because hydrogen exists in nature as H2. Very, very important to be added, or one molecule of H2 to be added. Here I will introduce one concept also. I will define it again later. DU. इसके बहुत सारे नाम हैं. Degree of unsaturation. बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट सुपर यूज है इसका. इनफाइनाइट यूज है. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट. du of a compound is equal to the number of moles of H2 या number of molecules of H2, number of molecules of H2 that must be added, or supplied to convert one molecule of that compound, one molecule
of that compound into an open chain saturated compound into an open chain saturated compound. Clear? D of a compound is equal to the number of molecules of H2 that must be added or supplied to convert one molecule of that compound in an open chain saturated compound. Can you tell me what is the DU of C3H6 after this discussion? Sir, H2. What is the DU of C3H6? C3H6 में कितना ऐड करने से C3H, what is C3H8? ओपन चेन, क्या लिखा है? ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड. सैचुरेटेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड? The single bond. Saturated compound means having no double or बोलिए Triple bond. ट्रिपल बॉन्ड. तो C3H6 को C3H8 में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल्स डालने पड़ेंगे H2? 1 मोल. 1 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल. अगर ये 1 मॉलिक्यूल लिया C3H6 तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2 प्रोवाइड करोगे तो मुझे क्या मिलेगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ C3H8 मिलेगा. कोई डाउट इसमें? बोलो. No, sir. No, sir. therefore DU of C3H6 क्या होगा? 1. क्या लिखा है? DU of a compound is equal to the number of molecules of H2 that must be added to convert one molecule of that compound into an open chain saturated compound. तो DU क्या हो जाएगा बताइए? C3H6 का क्या हो जाएगा? DU 1 हो जाएगा. 1. कोई डाउट इसमें किसी को? No, sir. ओके. No, sir. सब कुछ लिखिए मत, कुछ रिक्वेस्ट है, पहले समझिए. सब लिखने के लिए विल बी स्टडिंग वेरी स्लो, कोई दिक्कत नहीं है. बट जो सीख जाएंगे वो दोबारा आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं. एक ही बस मेरे लिए एक रिक्वेस्ट है. नाउ C4H8, इफ आई डील विद C4H8 का अगर मैं फॉर्मूला चेक करूं, इट इज CnH2n, है ना? CnH2n. Yes. अच्छा एक और कंक्लूजन, रुकिए. व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ C3H6? स्ट्रक्चर क्या था? ये भी था और ये भी था, है ना? Yes. It means if DU of a molecule of a compound is 1, then a compound must have 1 ring, देख सकते हैं, without pi, और 1 pi विदाउट रिंग. ये अंडरस्टैंड हुआ? सबको क्लियर हुआ? अगर किसी मॉलिक्यूल का DU1 दिखेगा मुझे तो उसके स्ट्रक्चर में क्या दिखेगा? या तो रिंग दिखेगा, आर यू गेटिंग इट? या तो रिंग दिखेगा, हेलो, Yes, sir. Yes. या तो फिर डबल बॉन्ड दिखेगा. दोनों दिखेंगे क्या साथ में? दोनों दिखेंगे क्या बताइए? No, sir. No, sir. नहीं दिखेंगे. प्लीज अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली, अच्छे से समझिए. क्योंकि C3H6 के 2 स्ट्रक्चर बनाए आपने. अगर सबने बनाए हैं तो नहीं बनाए तब 2 बनेंगे, 2 होंगे. दोनों में डिफरेंस क्या दिख रही है? एक में रिंग दिख रही है, एक में क्या दिख रहा है? पाई दिख रहा है. एक में अगर रिंग दिख रहा है, एक में पाई दिख रहा है, तो ये क्लियर कट होता है कि अगर C3H6 फॉर्मूला है तो इट विल बी आइदर 1 रिंग और 1 पाई. बोथ टुगेदर विल नॉट एग्जिस्ट. सो DU अगर 1 है, इट मींस द कंपाउंड मस्ट हैव 1 रिंग विदाउट पाई और 1 पाई विदाउट रिंग. कोई डाउट? No. Anyone? No, sir. Okay.
I will tell you how to calculate the formula also. Later I will discuss. पहले C4H8 का सब try कर लेते हैं. Let's draw all the structures of C4H8. Structures having formula C4H8. कितने मिले C4H8 के? Sir, 4. 5. चलिए सबके अलग अलग मिल रहे हैं. यही नहीं होना चाहिए. You have to try your best to get the all possible structures. पहले हम C4. अच्छा बताइए इसका फॉर्मूला क्या है? CnH2. CnH2. अरे जो बनाया बच्चा, C4H10. C4H10 क्या होता है? 10. इसमें कोई पाई है क्या? No, sir. No, sir. नो पाई और नो रिंग. हमें बनानी कौन सी है? लेकिन C4H8 बनानी है ना. तो हम क्या करेंगे बेसिकली? विल पुट वन डबल बॉन्ड. जैसे ही वन बॉन्ड बनाऊंगा, देखो गौर करो, जैसे ही वन बॉन्ड बनाऊंगा, C3H6 में दिख रहा है डबल 1 पाई बॉन्ड है. जैसे ही वन बॉन्ड बनाऊंगा, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे ना. हेलो, Yes, sir. Yes, sir. जैसे ही पाई बॉन्ड बनाऊंगा 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे. और पाई बॉन्ड कहाँ बना सकता हूँ? यहाँ पे बना सकता हूँ. अब C4H10 का एक और पॉसिबल स्ट्रक्चर था, वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास, तो उस पे भी बना सकते हैं डबल बॉन्ड. अब मैं अगर रिंग बनाऊंगा, रिंग कैसे बनाऊंगा? बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम हेयर एंड हेयर. आई टोल्ड यू, you already studied about this, how to approach this, removing hydrogen atom from adjacent and from non adjacent. ये पॉसिबल है. और क्या पॉसिबल है? कैसे किया होगा हमने? यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन हटा दिया. तो इन सभी का फॉर्मूला क्या है? इन सभी का फॉर्मूला क्या है बताइए? C4H8. C4H8. और जो हमने लेफ्ट में लिखा उसका फॉर्मूला क्या है? C4H10. C4H. C4H8 से C4H10 बनाने के लिए कितने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 ऐड करोगे आप? 1. अगर ये 1 मॉलिक्यूल लिया तो ये 1 मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे, ये भी 1 मॉलिक्यूल बनेगा. अच्छा, अगर मैं Na मॉलिक्यूल लिया, देखिए यहीं पे समझ में आएगी आपको. Na मॉलिक्यूल्स लिया तो कितने मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे? बोलो. Na मॉलिक्यूल्स ऑफ H2. 6.022. अरे into नहीं, Na एवोगाड्रो नंबर. कितने बनेंगे C4H10? उतने ही बनेंगे. Molecules. अच्छा, Na मॉलिक्यूल्स होती क्या है? 1 मोल. 1 mole. ये भी क्या होगा? 1 मोल. ये भी क्या होगा? 1 मोल. इसका मतलब if I take C4H8 1 mole and we are adding 1 mole H2, तो I will get C4H10. वो भी कितना रहेगा? 1 mole. 1 mole. So basically 1 molecule is extended to what? 1 mole. 1 mole. 1 molecule के लिए 1 molecule चाहिए. Na molecules के लिए Na molecules चाहिए. And Na molecules is what? 1 mole. लिख दिया हमने. Understood? Now tell me. अच्छा, ये क्या है? C4H10 जो हमने बनाया, ये सब क्या है? ओपन चेन है, सैचुरेटेड है ना? तो इसकी Yes. ड्यू क्या होगी? 1 ही ऐड किया ना मैंने. 1 के लिए 1 ऐड किया. समझ गए एग्जाम्पल पूरा? Yes, sir. Yes. तो इससे ज्यादा पॉसिबल बन नहीं सकते. अब आता है स्ट्रक्चर्स हैविंग C4H8 H10. Structures having molecular formula C4H6. Now it is little more difficult, but it is just extension of जो हमने ऊपर बनाया. ठीक है ना? देखिए, ये फिर से मैं वो ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगी. इसका फॉर्मूला क्या था? C4H10. C4H8 का फॉर्मूला क्या था? रुकिए. कितने लोग वेटिंग में चले गए?
सब सुनिएगा, हेलो, सुन रहे हैं? Yes. Yes, sir. अगर आप वेटिंग में हो तो प्लीज व्हाट्सएप में एक बार, है ना, नंबर सबके पास है ही। अगर आप वेटिंग में हो तो, अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए, अगर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, भूल गया कनेक्ट करना, पढ़ाते पढ़ाते भूल ही जाऊंगा, दो डिवाइस देख रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें तो मुझे स्क्रीन में सिर्फ स्क्रीन दिख रहा है, तो मुझे एक और डिवाइस कनेक्ट करनी पड़ती है जिसमें आपका अटेंडेंस दिखता रहता है। वो उधर देखना भूल गया, तो अभी 4-5 बच्चे वेटिंग में थे, तो जो वेटिंग में रहेंगे और प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए। C4H8 क्या क्या स्ट्रक्चर थे बताओ, तो कितनी बार बना रहा हूँ? अच्छा, इतनी बार बनाऊंगा, दिशा तो याद होगा कि नहीं बताओ? Yes, sir. याद ही हो जाएगा ना, मुझे याद करने की जरूरत नहीं है, खुद से याद हो जाएगा। आई एम नॉट लर्निंग एनी स्ट्रक्चर। हो गया। नाउ विल वर्क ऑन C4H6। अब कंफर्म है कि C4H8 का बेस कौन था? यही था। इसी में आपने क्या किया, यहाँ लगाया, यहाँ पे लगाया, है ना, यहाँ पे लगाया, ऐसा लगाया, और फिर इसी को अगर मैं ऐसा लिखूं तो ऐसा लगाया। अंडरस्टूड? तो वही बेस था हमारा। तो डेफिनेटली C4H6 का बेस क्या होगा? C4H8 होगा। तो लेट्स ट्राई टू मेक इट। ओके, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, बट बेटर क्या होता है बताया था, लीनियर रखना पड़ता है। बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, बेटर क्या होगा लेकिन 10। और क्या पॉसिबिलिटी है? ये हो सकता है क्या? बोलो, इज इट पॉसिबल? No, No. sir. No, sir. क्यों नहीं पॉसिबल है? Sir, it Carbon- is forming 5 bonds. 5 bonds on carbon, not possible। ठीक, और नेक्स्ट मूविंग, ये हो गए पॉसिबल, बन गए हमारे जितने बनने थे। फिर अब रिंग में भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं। मुझे 2 हाइड्रोजन कम करने हैं ना। 2 हाइड्रोजन कम करने का मतलब क्या हुआ? किसी मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन कम करने का मतलब क्या होगा? या तो रिंग बना दो या तो पाई बना दो। ये समझ में आएगी नहीं बताइए? Yes, ये sir. सबको सेट हुआ कि नहीं? अगर मैंने 2 हाइड्रोजन कम कर दिए और -1H2 कर दिए, तो या तो रिंग बन जाएगा या तो पाई बन जाएगा। तो हमने क्या किया, डन। आराम से समझो, टेक योर टाइम, ये सब अगर सेट हो जाएगी दिमाग में आपके, फिर क्या कर सकते हैं, दिस ऑल्सो, है ना। और क्या कर सकते हैं, दिस। क्लियर है? और क्या पॉसिबिलिटी बताओ, और क्या पॉसिबिलिटी है बताइए। Sir, right side में एक bond बना सकते हैं. राइट साइड में किसमें? Sir, वो square में. अब यहाँ पे बनाएंगे तो सेम ही हो जाएगा ना, जस्ट रोटेट दिस, तो सेम ही दिखेंगे, सेम मॉलिक्यूल हो जाएंगे। और सोचिए, आप बताएंगे, आप बता पाएंगे? बोलो। देखिए, अब ये मुझे बताओ, मैं एक ये ड्रॉ करता हूँ, इसी से आपको आइडिया लगेगा। अब नहीं समझ में आ रहा है, ये इसको ड्रॉ Diamond. कर। वेरी गुड, किसने कहा? Sir Kunal. हाँ बिल्कुल, मेरा मोटिव कुणाल इसमें स्ट्रक्चर बनाना है। मैं कहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करता हूँ वो मैटर नहीं करता, बस 2 हाइड्रोजन मैं या तो एडजेसेंट से रिमूव करूंगा
सेम से रिमूव नहीं कर सकता। अगर मैं सेम में ही रिमूव कर दिया, देखिए यहाँ पे अगर हमने एक कार्बन दोनों को रिमूव कर दिया तो बॉन्ड किससे बना हो गया? तो आइदर यू हैव टू रिमूव व्हाट, तो इससे नहीं बनेगा स्ट्रक्चर। इफ आई रिमूव, डायगोनली रिमूव करूंगा अगर मैं, तो दोनों पे एक बॉन्ड कम हो गए, उनको क्या कर देंगे? जॉइन। तो एक और क्या पॉसिबिलिटी है? दिस, चेक द बॉन्डिंग, कुछ गलत नहीं आएंगे, लॉजिकली सब सही है। और क्या कम पड़ रहा है, क्या नहीं बन रहा है हमसे? और क्या नहीं बना हमारा? कितने मिले सबको? इतने मिले। एक और क्या पॉसिबिलिटी है? अगर मैंने डबल बनाया तो दो डबल भी बना सकता हूँ। यहाँ पे जो डबल था, डबल मैंने यहाँ बना दिया, डबल यहाँ बना दिया, है ना? अंडरस्टूड। और इससे बेटर क्या होगा? जहां पे भी दो पाई बॉन्ड दिखे आपको, वहां पे क्या करनी है? लिनियरिटी ले आनी है। कितने स्ट्रक्चर्स डिफरेंट मिले बताइए? 1 2 3 9. 4 5 6 7 8 9। These two are सेम। अब इस सारे स्ट्रक्चर्स को ऑब्जर्व करिए पहले, क्या क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है इन सभी में? अबव स्ट्रक्चर्स में क्या क्या दिख रही है? इन अ मॉलिक्यूल आइदर इट इज हैविंग व्हाट, 2 पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं? बोलो। Yes. Without 2 पाई विदाउट रिंग। आप देखिए, मैं तो बता दूंगा तो लिख लेंगे, आप देखिए, देन ओनली यू विल लर्न, you will try to learn and you will understand the concept of DU. बोलो। 2 pi bonds without ring पॉसिबल दिखा मुझे? कहाँ दिखा वो? फर्स्ट वाले में दिखा, सेकंड वाले में दिखा, थर्ड में दिखा, फोर्थ में दिखा, है ना? और क्या पॉसिबिलिटी है? बोलो। 1 pi with ring. 1 point. विथ 1 रिंग, ठीक। और 2 रिंग्स, लास्ट वाला इज डिफिकल्ट, विदाउट पाई। कौन सा है वो? So 9. 9th वन। एकदम देखिए, आराम से, ड्रॉ नहीं करना है, रटना नहीं है, कुछ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? कुछ छूटेगा नहीं आपका। अभी तक हमने आईपीसी किया नहीं है। अच्छा, फ्यूचर में हम क्या कराएंगे आपसे? जो आपने इतनी मेहनत से बनाई है, बोलेंगे आईपीसी कर लो। सबका रूल्स ही तो है। आईपीएससी इज जस्ट रूल्स, ये रूल्स फॉलो करने हैं। तो रूल्स फॉलो करने से जो नेमिंग करते हैं, दैट इज नॉट डिफिकल्ट थिंग। डिफिकल्टी इज व्हाट टू क्रिएट सच स्ट्रक्चर्स। कितनों को 5 से ज्यादा स्ट्रक्चर आ गए थे लास्ट C4H6 में? सर मुझे 5 आया। चलेगा 5 या 5 से ज्यादा? चलो 5, और सबको कम आए थे। अच्छा बताइए, कोई भी स्ट्रक्चर अब हमने जो, आपने कौन सा बनाया दिशा बताओ इन सभी में से? C4H6 में कौन कौन से बनाए बताओ? सर मैंने फर्स्ट बनाया, ठीक सेकंड बनाया, ठीक, थर्ड बनाया, बोलते हो? एंड फिफ्थ बनाया, ठीक, एंड 8th बनाया। 8 बनाया। अब समझने वाली बात देखना, यहाँ पे देखा ये है, आपने जो जो बना दिया, सबसे प्रॉब्लम क्या थी? 9th को छोड़ के आपने ऑलमोस्ट इन ऑल द केसेस आपने एक एक तो बना ही दिया। आर यू गेटिंग इट? यस फर्स्ट सेकंड सही है, थर्ड अगर आपने बनाया तो फोर्थ क्यों नहीं? क्वेश्चन यहाँ आता है, बिकॉज यू आर नॉट केयरफुल बनाने के टाइम पे। दूसरी चीज, डोंट हैव एनी प्रैक्टिस। अगर आप केयरफुल रहते तो आप उसी से बन जाते हैं। बिकॉज आप थर्ड बनाएंगे तो फोर्थ क्यों नहीं बनाएंगे बताइए? इफ यू आर एबल टू फॉर्म द थर्ड वन, इट मींस यू आर पुटिंग वन पाई बॉन्ड, व्हाई नॉट यू आर पुटिंग अ पाई बॉन्ड हियर? आर यू गेटिंग इट? यहाँ भी पाई बॉन्ड क्यों यस नहीं? अब ये प्रैक्टिस से आएगी, और ये आप जब बनाएंगे तो सोचेंगे केयरफुल रहेंगे, जब यहाँ लगा सकते हो यहाँ क्यों नहीं? इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? वहां पे हाइड्रोजन थे, हटाऊंगा लगाऊंगा, कार्बन पे 4 बॉन्ड है, दिस कार्बन हैविंग 4 बॉन्ड, लॉजिकल सही है। ये गलत था, 5 बॉन्ड्स होंगे, पर वो सही है। अगेन फिफ्थ आपने बनाया तो व्हाई नॉट 6, व्हाई नॉट 7? है ना कुणाल? कुछ गलत बोल रहा हूँ बताओ? जब आप फिफ्थ बना लेंगे
तो 6 और 7 बनाने में क्या तकलीफ है? आर यू गेटिंग इट? दिशा समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रहा है? भाविका यस सर। सर आई Clear हैव है? अ डाउट। हाँ भाविका बोलो। सर 9th वाले में 2 रिंग्स कैसे है? अच्छा वो 2 रिंग कैसे? वो इसको एक रिंग बोल देंगे, इसको एक रिंग बोल देंगे, ओके सर। है ना? 9th लिटिल डिफिकल्ट होता है। डन यहाँ तक? ये समझ में आए? 9th Yes, नहीं बनना sir. चलता, लेकिन अगर आप 5th बनाए तो 6 7 क्यों नहीं? क्वेश्चन डेफिनेटली कम से। डन? सबको सारे स्ट्रक्चर्स क्लियर? रटने की एक एग्जांपल जरूरत नहीं है। ये क्लियर हुआ सबको? हेलो Yes, sir. रुकिए। अब मुझे बताइए जो C4H6 है उसमें कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करोगे कि वो ओपन चेन बन जाएगा? 2 molecules. 2 molecules. Understood everyone? हेलो सबको क्लियर है? कितने Yes, molecules sir. add करोगे? yes, देखिए ये इसमें कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? 6, 6, इसमें कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको? 10। 10, 10, तो डिफरेंस कितने हाइड्रोजन का है? 4, 2, 4। कितने मॉलिक्यूल्स का है? 2 molecules. 2 2. molecules. तो 2 मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो ओपन चेन, बिकॉज यही तो ओपन चेन है ना? Okay, sir. अब आप बोलोगे नहीं सर अगर हाइड्रोकार्बन नहीं हुआ तो सम अदर एलिमेंट्स आर देयर स्टिल। जब आप पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, मान लो हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, बताइए कितने बॉन्ड कम कर दिया हमने? बिल्कुल समझ के। 1. 1, 1 One. on each carbon, 1 सिर्फ नहीं, 1 on each carbon. If I break one bond, I am decreasing 1 bond on each carbon. It means we have to add 2 hydrogen atom. Yes, sir. yes, अब यहाँ पे Cl लगा हुआ है, उससे क्या मतलब है? यहाँ तो मैं हाइड्रोजन लगा ही सकता हूँ, साइड में क्या लगा उससे कोई मतलब नहीं। If I want to decrease one pi bond, we have to satisfy the bonds also by putting hydrogen. तो what is the du of this molecule? क्या होगा बताइए? sir, 2, 2. 2. 2. बड़ा आसान है फॉर्मूला से निकालना, बट कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको उसका एप्लीकेशन समझ में आएगा। What is the d of C4H8? 1. 1, 1. 1. What is the, अब ये बताया नहीं मैंने, ये पूछ रहा हूँ, what is the d of this? 0. 0, 0, अच्छा ये तो नहीं बताया, तो तुम लोग कैसे बता दिए? बिना बताए बता दिया आपने। इट इज 0। वाई? क्योंकि इसमें ऑलरेडी ओपन चेन है, ऑलरेडी इसमें पाई बॉन्ड नहीं है, सैचुरेटेड है, वी डोंट हैव टू ऐड एनी हाइड्रोजन। डन यहाँ तक सबको? Yes, sir. yes, कोई sir. डाउट? जरा सा भी डाउट? तो अगर आप किसी मॉलिक्यूल किसी गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ड्यू निकाल लो, उससे आपको क्या हिंट मिल जाएगी कि उसमें, अच्छा पहले एक केसेस लिख लेते हैं, रुकिए। इनमें क्या ऑप्शन है? 1 पाई, आई हैव ऑलरेडी रिटन दिस, है ना, विदाउट रिंग। और क्या ऑप्शन है? 1 रिंग विदाउट, बोलो, पाई। तो अगर ड्यू 0 है तो उसमें पाई होगी क्या? बताइए। No, sir. अभी भी आपको ड्यू कैलकुलेट करने का मेथड नहीं बताया, ठीक है ना? जस्ट इंट्रोड्यूसिंग द ड्यू कॉन्सेप्ट। तो C4H10, C4H10 ही नहीं, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड या रिंग नहीं हो, पाई बॉन्ड या रिंग नहीं हो, तो उसका ड्यू क्या हो जाएगा? 0. 0, 0। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में उसमें कुछ भी नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी लगा हो, उसमें अगर एक पाई बॉन्ड है तो ड्यू क्या होगा? 1. 1. 1, because ultimately we have to break that pi bond and we have to attach what? Hydrogen. उसमें साइड में क्या लगा हुआ है उससे क्या मतलब है? Are you getting it? We have taken the example of hydrocarbon, but it is introduced in all kind of molecules, because ultimately when you are changing one molecule to the open chain, you are going to attach what? Hydrogen. तो रिंग को ओपन करूंगा तो हाइड्रोजन ऐड करूंगा, पाई को ब्रेक करूंगा तो हाइड्रोजन ऐड करूंगा। अंडरस्टूड एवरीवन? क्लियर है Yes, यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है। तो हम देखो अब हमने इतना समझा दिया। एक काम करिए, पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले डी का डेफिनेशन मत लिखिएगा, विल राइट इट लेटर। ये सब लिख लीजिए पहले अच्छे से, जिसका नहीं हुआ है, जिसने कंप्लीट नहीं किया। कोई हड़बड़ाहट नहीं है, विल स्लोली मूव, आराम से लिख लीजिए। तब तक थोड़ा पॉज कर देते हैं।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, C6H14 के सारे स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। सब बना लेते हैं। 6 कार्बन का एक, 5 कार्बन का 10, there are two possibilities of 5 carbon 10, 4 कार्बन का 10, एक और पॉसिबिलिटी है 4 कार्बन का 10। तो देखिए पहले अल्केन मैंने बना लिया, बिकॉज अल्किन बनाने जाएंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे, अंडरस्टूड। तो पहले अल्केन बना लिया मैंने। अल्किन बनाने के बाद अब ध्यान दीजिए, ये अल्केन किस किस अल्कीन से बन सकता है बताइए। ये अल्केन किस किस अल्कीन से बन सकता है? ये ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन कर लिया, अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. कर लिया हमने, ये कर लिया। नाउ दिशा क्वेश्चन सॉल्व हो बोला। देखो दिल पे मत लेना कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है ना, जस्ट गिव अ ट्राई। क्लास सिर्फ सीखने Yes, के sir. लिए है, टेस्ट में दिल पे लिया करिए। टेस्ट में अगर मार्क्स नहीं आते हैं तो दिल पे लीजिए, और घर पे इसको उस चैप्टर को फिर से पढ़िए, उस पर फिर से 50-60 क्वेश्चन करिए, तो आप दिल पे लेना कहते हैं, समझ रहे हैं? इफ यू आर गिविंग अ Yes. टेस्ट एंड यू आर लूजिंग सम मार्क्स, any reason, तो again come home and revise it the topic after giving the test, check all the possible question जो गलत हुए हैं, थ्योरी चेक करो, रिवाइज करो। यही रेगुलर प्रैक्टिस डिसिप्लिन फॉलो करनी है, स्ट्रैटेजी के साथ चलते जानी है। पेपर हो गया, मार्क्स नहीं आए छोड़ दिया, फिर कुछ नहीं फायदा होगा। टेस्ट के बाद तुरंत आया, तुरंत पूरा टॉपिक को रिवाइज किया, उसमें फिर से 50-60 क्वेश्चन सॉल्व किए, नए क्वेश्चन सॉल्व किए, इवन पुराने क्वेश्चन रिवाइज किए। नहीं कम क्वेश्चन कम पढ़ रहे हैं, आज द फैकल्टीज गेट मोर क्वेश्चंस, गेट मोर असाइनमेंट एंड सॉल्व इट। कैसे क्वेश्चन छूट जाएगा? तब दिल पे लगना चाहिए, पर दिल पे लगने का मतलब पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए। 5 का उनका देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ का डबल बॉन्ड लगा सकते हैं? यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो सेम हो जाएगा। यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा, और यहाँ पे लगाऊंगा। 4 पॉसिबिलिटी है, आप देख रहे हैं, 4 पॉसिबिलिटी है। तो 4 अल्कीन से सेम अल्केन बना सकते हैं, 4 अल्कीन से सेम अल्केन बना सकते हैं बाय पुटिंग व्हाट, बोलो? 1 One pi bond. नहीं, बाय ब्रेकिंग 1 pi bond, बाय पुटिंग व्हाट, Yes, 1 मॉलिक्यूल sir. ऑफ H2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, सभी से बना सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन अगर मैं ये पूछ दूं, हाउ मेनी एन अल्केन C6H14 इज फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ 4 अल्केन्स, तो क्या आंसर होगा? सेकंड वाला Second. क्वेश्चन आप खुद से जनरेट करिए। देखिए हमने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया आपको, यू कैन जनरेट मोर क्वेश्चन फ्रॉम हियर। इसमें दिस तीनों से आपको फिर से अल्केन बन सकता है। फोर्थ वाला 4 कार्बन का चेन बनाया मैंने, इसमें से कहां डबल बॉन्ड प्लेस कर सकते हैं? ओनली 1 पोजीशन है कि नहीं, बताइए? कहीं और प्लेस कर सकते हैं क्या? ऐसे कर सकते हैं? बोलो। No. नो, सेम हो जाएगा सर। सेम कैसे हो जाएगा बच्चा? पॉसिबल ही 5 नहीं है ना। bonds. 5 बॉन्ड, 5 सर बॉन्ड 5 बॉन्ड। पॉसिबल ही नहीं है। नाउ दिस स्ट्रक्चर,
यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, दो ही पे लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ लगाएंगे सेम हो जाएगा, यहाँ पे लगाएंगे सेम हो जाएगा, ऑल आर सेम, सिर्फ दो ही डिफरेंट आएंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? लास्ट में लास्ट 1 अल्केन था, 2 अल्किन्स थे। बट नॉट ओनली दिस, हमने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, कितने सॉल्व किए इस पैटर्न के क्वेश्चन बताओ? सेम फॉर्मूला सब कुछ। 1 क्वेश्चन ये होगा, 2 क्वेश्चन ये होगा, 3 क्वेश्चन यहाँ से भी होगा, 4 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन होगा। अब आपसे पूछेंगे ऐसे कौन सा 2 अल्केन्स है जो सिर्फ 3 अल्किन से बनता होगा? कौन सा होगा? फर्स्ट और थर्ड वाला। फर्स्ट एंड थर्ड। लेटर ऑन यू विल रियलाइज कि 5 अल्किन भी हो सकता है, बिकॉज जो हम मॉलिक्यूल लिख रहे हैं इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है, बाद में पढ़ेंगे। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो टोटल 5 हो जाएंगे, 3 नहीं रहेंगे। स्ट्रक्चरली 5 रहेंगे, 3 रहेंगे, बट अगर डिफरेंट पूछेंगे तो 5 हो जाएंगे। स्ट्रक्चरली 3 रहेंगे, तो 3 पहले सीखिए, स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। और आपको मैंने बता दिया कि आप भी मार्क कर सकते हैं। इन फ्यूचर यू विल स्टडी दिस विल एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, सेकंड थर्ड वाला भी एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, बाद में पढ़ोगे आप, तो ये दिमाग में रहेंगे आपको। इसमें भी दिस विल एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, दिस विल एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, दिस नॉट दिस वन, हाँ दिस विल एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, this will exist in 2 form, bas remaining सब single form में होंगे। So these are the questions. Done? सब लोग यहाँ तक clear है? यस सर। कोई डाउट किसी को भी? ओके, अब आई क्वेश्चन पे। ये सॉल्व हुआ दिशा? नहीं सर, 5-6 बार ट्राई किया, नहीं आ रहा है। ट्राई करते रहो ट्राई करो, ट्राई करते रहिए, डेफिनेटली पॉसिबिलिटीज आएंगी। जिससे क्या होगा, ट्राई करने से आप खुद से नए नए स्ट्रक्चर जनरेट कर रहे हैं। फिर आप देख रहे होंगे कभी क्लास में क्या होता कि बच्चे बनाते के दिखाते जाते हैं कि सर मैंने ये बना दिया, मेरा ये सही है। फिर मैं बताता कि नहीं सर देखो बेटा उसमें 5 डिफरेंट कार्बन है, अभी वो ऑप्शन नहीं मिल रहा मुझे, इसलिए आपसे जिसका बन गया मैं मांग रहा था। जैसे अभी अगर मैं ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बना सकता हूँ यहाँ पे, there are 2 questions you can create, 2 question I can create। एक क्वेश्चन में क्या करता हूँ, इट हैज 2 डिफरेंट नहीं लिखता हूँ। तो एक जैसे श्रेणी ने दिया था, ओमकार ने आंसर दिया था, वो बनाता हूँ स्ट्रक्चर। CH3 CH3 CH2 CH2 CH3 CH3, ये सही है। अब इसमें आप लेफ्ट वाला पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम राइट वाला पार्ट है, तो एक भी पार्ट को आप देख लेंगे तो काम हो जाएगा। ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री। ये कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री। ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री। ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री। बट ऑल आर डिफरेंट टाइप। तो नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप कितने हो गए? बोलो। 3 हो गए। 2 1 डिग्री था, एक 3 डिग्री था, वो तो सही है। कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है? 12 हो गए, तो भी सही है ना? 12 1 डिग्री ओपन चेन सब सही है, तो ये सब तो सही हो गया। लेकिन अगर मैंने कंस्टेंट यहाँ लगा दिया, इट हैज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ भी मुश्किल हो जाएगी। और इवन ये भी लगा दिया एंड ट्वेल्व 1 डिग्री हाइड्रोजन ओनली, और थोड़े चेंजेस कर रहा हूँ, तो चेंजेस करते जा रहा हूँ। 12 1 डिग्री हाइड्रोजन ओनली, एंड नो 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन। जब ये लगा दूंगा तो ऊपर वाला खत्म हो गया, बिकॉज यहाँ पे 2 डिग्री हाइड्रोजन भी है, 3 डिग्री हाइड्रोजन भी है। क्लियर? इतना कुछ कंस्टेंट लगाने के बाद आपको अब चेंज करते रहनी है। जितना बड़ा मॉलिक्यूल बनाओगे, पॉइंट इज व्हाट इज आवर लर्निंग हियर,
जितना बड़ा मॉलिक्यूल बनाओगे उतने नंबर ऑफ डिफरेंट कार्बन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना। यस अगर मैं ऐसा ऐसा करता जाऊं, ऐसा 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 ओ ऐसा, पता है इसमें कितने डिफरेंट कार्बन है? सभी डिफरेंट है, यस सब डिफरेंट है ना, ऑल आर डिफरेंट, ऑल कार्बन आर डिफरेंट। तो अगर जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उतना ही डिफरेंट कार्बन बढ़ता जाएगा। तो इट डेफिनेटली शोज अस कि हाँ, नंबर ऑफ जो कार्बन है मॉलिक्यूल में बहुत ही कम रखो, तभी आपके डिफरेंट भी कम रहेंगे। ओमकार, ओमकार ने कितने अभी बना के दिया था मुझे? सुमित ने, हाँ सुमित ने बना दिया। सुमित, तुम्हारे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, देखिए। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन, अच्छा ये कार्बन क्या है बताइए, 1 डिग्री या सुपर प्राइमरी? सुपर प्राइमरी, ऊपर प्राइम बट सुपर प्राइमरी को कंसिडर क्या करनी है, प्राइमरी बताया था कि नहीं? बताया था सर। बताया था, कंसिडर एज प्राइमरी दिस, ठीक है। ये 1 डिग्री हो गई, फिर ये भी 1 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया, 4 डिग्री, और ये सभी क्या है, 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, और सब पे क्या है, हाइड्रोजन है। तो टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, 12। 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या है, 0। 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या है, 0। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन हो गए एंड 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हो गए। ऊपर कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन थे, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी थे। बट इट्स वेरी गुड, बहुत लोगों ने बनाया और उसको सेंड किया। नथिंग टू लर्न, सिर्फ बनाते कैसे हैं, अप्रोच कैसे करते हैं वो देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चंस की कोई लिमिट ही नहीं है, अब देख रहे हैं इनफाइनाइट क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन नॉट लर्न ऑल द क्वेश्चन, यू जस्ट लर्न हाउ टू अप्रोच इट। और बार बार रिवाइज करोगे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो आपको वैसी सब चीजें याद हो जाएगी। सर मैंने 1 डिग्री हाइट 12 1 डिग्री हाइड्रोजन लिखा था, तो मैं 12 1 डिग्री कार्बन लेके बना रही थी। अच्छा ठीक, मतलब क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में सबसे पहला काम क्या है, क्वेश्चन ठीक से पढ़ें आप, मार्क्स बाद में सोचेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो गलत हो जाएगा फिर। समझ में आया सबको? तो आज मैं सिर्फ सिर्फ ड्राइंग ही किया है, सिर्फ स्ट्रक्चर ही बनाया है। आप क्या करना, नोटबुक में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का डेफिनेशन लिखना, सिर्फ डेफिनेशन लिख के रखना, ठीक है। सिर्फ यहां से यहां तक डेफिनेशन लिख के रखिएगा, या मैं लिखूंगा तो मेरे साथ ही लिख लेना अगले क्लास में, ठीक है ना सब लोग? ओके हेलो, ठीक है। चलिए, काफी स्ट्रक्चर बनाया आपने आज, हमने कुछ ज्यादा कुछ थ्योरी नहीं पढ़ा, तो अगले क्लास में थ्योरी पढ़ेंगे, उस पर क्वेश्चंस करेंगे और भी सारे, देन विल ट्राई टू मूव ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नेक्स्ट क्लास विल बी मोर इन्फॉर्मेटिव, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा आफ्टर ड्राइंग सम स्ट्रक्चर्स, ठीक है। हाँ एक काम करिएगा, रुकिए एक मिनट रुकिए, लिंक शायद मैंने किसी को शेयर किया था, किसको शेयर किया था मैंने लिंक, रुकिए एक मिनट रुक जाइए। शायद शेयर किया था मैंने क्लासरूम पे, अच्छा चैट बॉक्स में, एक मिनट रुक जाइए। देखिए आपके चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ, मैसेज कर लीजिएगा, मैसेज कर रहा हूँ आपको। ये हो जाएगा आपके वीडियो का लिंक,
कॉपी कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू बेटा, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद DU। Thank you, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Yes, sir.